Good morning, everyone. So, continuing with the depreciation, let's begin. Today, the date is 20th July. Depreciation continued. चलो जी. Now, we are going to discuss single asset purchase and sale. अकाउंट में कैसे बनानी है. So, that would be, I guess, case. Like अगर हम केस वाइज डिस्कस करें, केस 1 was single asset purchased. Second case was 2 assets purchased. Now third case is single asset purchased and sold. Single asset purchased and sold. और फिर हम आएंगे 2 assets में से 1 asset सेल होगा, ठीक है, and sold. इसके क्वेश्चन मैं अपने आप से दूंगी. So write down the question from the lecture itself. चलो जी, let's begin question. Rahul purchased machinery for 55,000 on 1st October 17 and spent rupees 5,000 on installation. IGST at the rate of 10%. The machinery was sold on 31st March 20 at a loss of 20% on book value. Prepare machinery account till the date of sale. Prepare machinery account till the date of sale. Depreciation charged at the rate of 10% per annum on straight line method basis. ठीक है जी, चलो लेट्स बिगिन. कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट कितनी है? 55,000 की एसेट है एंड वी हैव स्पेंड 5,000 ऑन इंस्टॉलेशन. एसेट का खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड. ओके, अपने लिए ना सब कुछ लिखो. डेप्रिसिएशन रेट क्या है? 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, फर्स्ट मेथड. नंबर 3, अकाउंट्स क्लोज. लिख लो अकाउंट्स क्लोज ऑन 31st March. 31st March. Let's begin. Current start machinery account. Till the date of sale बनाना है. Left hand side debit side, right hand side credit side. Date, particulars, folio. You need not make it machinery asset account में रहना है. Date, particulars, folio, amount rupees. चलो, पहली एसेट खरीदी. एक ही एसेट खरीदी.
कब खरीदी? 1 October 70. So put the date. 1 October 70. To bank. How much? 60,000. Ignore IGST, है ना, अकाउंट में नहीं लेना. The accounts are closed on 31st March every year. तो अगली डेट आ गई 31st March 18. By depreciation for year 1. But be very careful. 60,000 की एसेट थी. What is the depreciation rate? 10%. Depreciation will be charged for how many months? 1 October को अगर एसेट खरीदी है, depreciation will be charged for 3 months. Depreciation will be charged for 3 months. ठीक है जी, चलो. $60,000 की एसेट खरीदी है, 3,000 डिप्रिसिएशन. एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी? 57,000. ठीक है. बाय balance carried down. What would be the date? 31st March 18. The balance which is carried down is brought down. So write down the date. 1st April 18. अगला ही दिन हो जाएगा. To balance brought down 57,000. ठीक है. 31st March 19 by depreciation to year 2. Now this time the depreciation will be charged for full year, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही हाफ ईयर के लिए यूज हुए, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से फुल ईयर के लिए यूज हुए. रेस्ट विल बी बाय बैलेंस कैरिड डाउन. 57,000 minus 6,000. What would be the date? 31st March 19. ठीक है जी. First April 19. 1st April 19. To balance brought down 51,000. 51,000. Yes or no? अगली डेट क्या आ गई? टिल 31st March 20 द एसेट इज यूज्ड. सारा साल एसेट यूज हुआ. अगेन चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर. 60,000 इंटू 10%. कितनी होगी? 6,000. स्ट्रेट लाइन मेथड से 60,000 पर चार्ज करना. ओके. Now I will not do it as carried down because the asset is sold on the same day itself. So what will I write? एसेट जब खरीद रहे थे टू बैंक, अब एसेट बेच रहे तो बाय बैंक. और हमें क्या हो रहा है? लॉस. अगर लॉस होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर लिखेंगे, और अगर प्रॉफिट होगा इधर. आई रिपीट, लॉस ऑन सेल होगा तो इधर लिखेंगे, और अगर प्रॉफिट ऑन सेल होगा तो इधर लिखेंगे. ठीक है. चलो. नाउ द प्रॉब्लम इज वैल्यू कैसे निकालें. यहाँ से देखो, 51,000 तक की एसेट थी. 6,000 इस साल भी उस पर डिप्रिसिएशन होगी. एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी? 51,000 माइनस 6,000, 45,000. सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%. Loss of 20%. Sold at a loss of 20%. ठीक है. माइनस लॉस एट द रेट 20%. 45,000 बुक वैल्यू. बुक वैल्यू होती है वैल्यू इन द बुक्स ऑन डेट ऑफ सेल. तो सारे सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आज वैल्यू रहेगी 45,000. इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%. 9,000 का लॉस. सो व्हाट इज सेल वैल्यू? 45,000 माइनस 9,000, 36,000. अपोज द आइटम्स.
Now post the items. 45,000 is, sorry, 36,000 is sale value, 9,000 is loss. When you will do this thing, automatically your account will tell you 51,000 idhar, 51,000 idhar, and the sum is over. And the sum is over. Is it clear? समझ में आई बात? Yes or no? So this is how you have to do solve this one. ठीक है? चलो note it down. Next question. तो सिंगल एसेट में ऑटोमेटिकली द अकाउंट विल स्टैंड क्लोज, क्योंकि एक ही एसेट थी, 2.5-3 साल जितनी भी देर वो यूज़ हुई, उसके बाद वो एसेट सेल हो गई, उसके बाद वो एसेट सेल हो गई. बट इफ़ यू हैव मल्टीपल अकाउंट्स और मल्टीपल एसेट्स, जैसे एक एसेट खरीद रहे हैं, एक बेच रहे हैं, देन वी विल हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट. क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट. सो लेट्स शिफ्ट टू केस नंबर 4. लेट्स शिफ्ट केस 4. when 2 assets are purchased and 1 is sold. 2 खरीदे, 1 बेचा. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन. 2 खरीदे, 1 बेचा. क्वेश्चन. साक्षी परचेज्ड furniture costing 1 lakh on 1st April 16. On 1st October 17, she purchased another furniture costing 60,000. Okay. On 31st March 18, the furniture purchased on 1st April 16 was sold at a profit of 3,000. Prepare machinery account till 31st March 19. Depreciation is charged at the rate of 20% on straight line method basis. And accounts close on 31st March 19. Let's begin. To offer convenience to yourself, though it is not optional but it is always convenient, to offer convenience to yourself, prepare working note. जब 2 एसेट्स आ जाएं तो हम क्या बना देंगे? वर्किंग नोट. ठीक है. फर्स्ट एसेट कब खरीदा? 1st April 16. सेकेंड एसेट कब खरीदा? सिंस इट इज फॉलोइंग इन अ लेटर ईयर, तो राइट इट बीनीथ 1st April 16. थिंग्स वुड बी कंपैरेटिवली इजी. साथ में मत लिखो सेम साल डिपिक्ट करता है जबकि ये नेक्स्ट ईयर. सो 1st October 17. चलो जी करें स्टार्ट. चलो जी 1st April 16 को फर्स्ट फर्नीचर खरीदा एंड ऑन 1st October 17 को सेकेंड खरीदा. ऑन 31st March 18 को फर्स्ट बेच दिया, वो भी लिखा. ऑन 31st March 18 को ये वाला फर्नीचर बेच दिया. ठीक है जी, चलो लेट्स बिगिन.
अब समथिंग लाइक कि इसको हमने फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। एंड 1 अप्रैल 16 को पहला फर्नीचर खरीदा 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1, क्या रेट लगना है 20%। 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, सो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर एंटायर ईयर। बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 17, चलो है ना, माइनस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन 80,000 पे, 80,000 पे नहीं 1 लाख पे 20%, क्योंकि अगेन 20,000। बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 18, 60,000। प्रॉफिट कितना वो देते हैं, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,000। एनीबडी हु कैन टेल मी द सेल वैल्यू, 63,000। इमेजिन किया करो क्या हुआ, सेल वैल्यू हाउ मच, 63,000, ठीक है। सो 1 अप्रैल 16 को पहला फर्नीचर खरीदा। अब जानते हैं मैंने प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने रेट्स डिफरेंट दे दिए, जैसे इस बार मैंने 20% दे दिया। तो 1 लाख का 20%, 20,000, कितनी बुक वैल्यू रहेगी 80,000। सेकेंड में फिर सारा मशीनरी यूज हुई, सो डेप्रिसिएशन विल बी 20,000, बुक वैल्यू कितनी रहेगी 60,000। प्रॉफिट कितना है 3,000। हाउ मच इज द प्रॉफिट 3,000, व्हाट इज द सेल वैल्यू 63,000। नाउ सेकेंड फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 17। एनीबडी हु कैन टेल मी क्या उस पर फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन रहेगी, नो, क्योंकि वो एसेट एग्जिस्टेंस में ही कब आया, सेकेंड ईयर। सो माइनस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2। ओके, सेकेंड फर्नीचर खरीदा कितने का, 60,000 का, माइनस 20% फुल ईयर का है, 20% फुल ईयर का है, और 1 अक्टूबर को खरीदा तो हाफ ईयर का कितना हो गया 6,000। आई रिपीट 60,000 पे just because it is purchased on 1st October, depreciation will be charged at the rate of 20% for 6 months only. Book value on 31st March 18, 54,000 minus depreciation for year 3, केवल ऐसे तो ईयर 3 यूज हुआ है, 60,000 पे 20%, नेक्स्ट ईयर पूरे साल। बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 19 तक बनाना था ना, चलो जो एसेट तो नहीं चला वो 31 मार्च 19 तक नहीं चलेगा, बट जो चल रहा है उसको तो बनाएंगे। बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 19, यही कहा है प्रिपेयर एसेट अकाउंट टिल 31 मार्च 19। आई रिपीट द एंटायर वर्किंग बुक। हमने पहली एसेट खरीदी 1 अप्रैल को 16 को, और कहते हैं इस एसेट से चेक करना होता है कितने ईयर्स, कहते हैं 4 ईयर्स। इट मीन्स अगर मैं ईयर साइड पे लिखूँ, राइट द ईयर्स, तो हाउ विल दे वर्क, 31 मार्च 19 ना, that would be 1 April 16 से 31 मार्च 17, 1 April 17 से 31 मार्च 18, 1 April 18 से 31 मार्च 19। ठीक है जी, यस और नो, यस और नो। चलो अब शुरू करें। अब 1 लाख को जो एसेट खरीदी थी फर्स्ट ईयर में पूरा साल यूज हुई, डेप्रिसिएशन 20% रेट का है, 80,000 एसेट रखी, सेकेंड ईयर में भी पूरे ईयर के लिए यूज हुई। 31 मार्च 18 को उसकी वैल्यू रहेगी 60, इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,000, सेल वैल्यू आई
इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 3000, तो सेल वैल्यू कितनी आई? $63,000। जो सेकेंड एसेट है वो कब खरीदा? जो सेकेंड एसेट है दैट हैज़ बीन परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। कॉमन सेंस है 20% अगर पूरे साल की एसेट है, एसेट इज यूज फॉर 6 मंथ्स, so 60,000 का 10% 6 मंथ्स के लिए 20%, सॉरी, सो दैट विल बी 6,000। एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी? 54,000 माइनस डेप्रिसिएशन 20%। फुल ईयर कब था लगा दो। चलो लेट्स बिगिन विथ फर्नीचर अकाउंट, इसके बाद अकाउंट बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। सबसे पहले हमने फर्स्ट एसेट खरीदी 1 अप्रैल 16 को टू बैंक। चेक इट आउट, हमने 1 अप्रैल खरीदी, 1 अप्रैल 16 को खरीदी, देखो टू बैंक, देखो 1 लाख। For the entire year the asset is used and at the year end depreciation is charged, and at the end depreciation is charged 20,000। बाय बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकालते हैं? क्रेडिट डेबिट माइनस क्रेडिट, 1 लाख minus 20,000 80,000। What would be the next date? 1 April 17 to balance brought down, ठीक है, how much? 80,000। Now what happened in this year? On 1 October 17 I purchased another asset to bank। कितने का खरीदा? I purchased another asset to bank। कितने का खरीदा? 60,000। चलो, now we have two assets in existence। When I will charge depreciation for second year, when I will charge depreciation for second year by depreciation, it will be charged on two assets। जो तो फर्स्ट एसेट है 20% पूरे साल का, और जो सेकेंड एसेट है वो 60,000 का खरीदा है, हाफ ईयर की लगेगी उसको, है ना, 26,000 बिकॉज इट इज परचेज ऑन 1 अक्टूबर। जिस साल एसेट बीच में खरीदा हो डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ यूज। 1,40,000 1,40,000 माइनस 26,000 कितनी वैल्यू रहेगी? 114,000 एंड माई सेकेंड ईयर इज कंप्लीट, एंड माई सेकेंड ईयर इज कंप्लीट, ठीक है। कमिंग ओवर टू द थर्ड ईयर, डेट वुड बी 31 मार्च, सॉरी 1 अप्रैल 18 है ना, 31 मार्च 18 के बाद अगली डेट क्या आएगी? 1 अप्रैल 18। तो पिछले साल का बैलेंस ऐड डाउन होता है और नेक्स्ट डे पे ब्रॉड डाउन होता है। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन 114,000, ठीक है। Now what happened in this year? Nothing was purchased, but one asset was sold।
डेट 31 मार्च 19 है ना। देखो एसेट कब से भी अच्छा वेट 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 वैसे इसी साल में सेल हो गई। वेट वेट ये रख करेंगे। चलो इसी साल 31 मार्च 18 को पहली वाली एसेट सेल हो गई। जो एसेट सेल होती है ना उसकी 3 आइटम रिकॉर्ड करते हैं। क्या क्या? एक तो सेल वैल्यू, कितने पे सेल हुई है 63,000। क्या रिकॉर्ड करते हैं? सेल वैल्यू। एक रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। मैंने कहा था लॉस ऑन सेल इधर है तो प्रॉफिट ऑन सेल इस साइड है। आई मेड टू राइट द एंट्री ऑल्सो। और एक जो एसेट बिकी है उसकी डिप्रिसिएशन। रेस्ट विल बी बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,43,000। क्योंकि एक एसेट तो इसी साल में लास्ट डे पे बिक गई। एक एसेट तो इसी साल में बिक गई। कितने की बिकी है एक बार? अब एसेट कितने की रह गई? 54,000। ठीक है जी, कितनी रह गई? 54,000। इसको हम यहाँ पे करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,000। इस साल कुछ भी नहीं हुआ, सारा साल ही एसेट यूज हुई। दो बार करोगे ये सम। बाय डिप्रिसिएशन फॉर ईयर 3 ओरिजिनल वैल्यू पे 12,000 बाय बैलेंस कैरेट 42,000। एंड द गुड पार्ट इज इन सारे क्वेश्चन में जब हम वर्किंग नोट बनाते हैं और जब हम अकाउंट बनाते हैं हमारा आंसर ऑटोमेटिकली टैली हो जाता है। क्या आंसर आ रहा है? बाय बैलेंस कैरेट। चेक करो। सारी डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद एसेट अकाउंट में कितना पड़ा होना चाहिए? 42,000। यहाँ पे ये वाली एसेट सेल हो गई थी। दिस वॉज लिफ्ट। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द आंसर? 42,000 है ना। सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द आंसर? 42,000। अगर बीच में ही कोई एसेट सेल हो गई हो तो अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आई रिपीट मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन के हाईलाइट्स देखें। एसेट कितने की थी? 1 लाख। खरीदी का 1 अप्रैल। ऑन 1 अक्टूबर शी परचेज अनदर फर्नीचर कॉस्टिंग 60,000। ऑन 31 मार्च 18 यहाँ से कंपेयर करेंगे यानी 2 साल बाद the furniture purchased on 1 April 16 was sold at a profit of 3,000, not 3 lakh. Prepare machinery account till 31st March 19. Charging depreciation at the rate of 20% on straight line method. Accounts close on 31st March 19 every year. ठीक है जी। चलो जी। On 1st April 16 asset was purchased. कितने की एसेट खरीदी? कितने की एसेट खरीदी? 1 लाख। ओके, उसके बाद सारा सा डिप्रिसिएशन लग गई। D1 20,000, वैल्यू रह गई 80,000। सेकेंड ईयर में भी डिप्रिसिएशन लगी 20,000, वैल्यू रह गई 60,000। एसेट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,000। सेल वैल्यू कितनी है? 63,000। व्हाट इज द सेल वैल्यू? 63,000। Coming over to second asset. Now an important part about second asset is second asset खरीदी 1 अक्टूबर सेकेंड ईयर वो।
नेचुरली अगर सेकेंड ईयर में खरीदी है उस पर D1 तो लगेगी नहीं, जो एसेट एग्जिस्टेंस में ही आ जाइए उस पर पिछले साल की डेप्रिसिएशन कैसे लग सकती है, तो सिर्फ इसी साल की लगाएंगे. एंड द सेकेंड थिंग वाज डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ यूज, सो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स. और बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं, आदत होती है 10% रेट से ही सम करने की, बट मैंने इंटेंशनली क्वेश्चन में रेट क्या चेंज कर दिया, क्वेश्चन में रेट क्या चेंज कर दिया, 6% कर दिया. ठीक है, सॉरी 6 मंथ्स 20% कर दिया. चलो जी, अब वैल्यू कितनी रह गई एसेट की, एसेट की वैल्यू रह गई 54,000. ये सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन रहेगी 12,000, पूरे साल की लगेगी. व्हाट इज द वैल्यू लेफ्ट, 42,000. नाउ दिस एसेट इज सोल्ड एंड दिस इज लेफ्ट, so in any case your answer from the account should be the value of second asset. If it does not come and it does not tally with the working note, it means you have done something wrong. ठीक है, देखो मेरा क्या आ रहा है आंसर. सी 42,000 यही आना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट प्रिपेयरिंग द अकाउंट. नॉर्मली ना बच्चों को वर्किंग नोट इजी लगता है, अकाउंट बनाना अच्छा लगता है, बट इट्स ऑल अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, सो यू विल फेच मोर एंड मोर रिजल्ट्स. दिस इज एज सिंपल. ठीक है, चलो. टू बैंक कितने का एसेट खरीदा, 1 लाख बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की ऑन फर्स्ट एसेट. बैलेंस कैरी डाउन, जितना कैरी डाउन उतना ब्रॉट डाउन है ना. ठीक है, $80,000 बाय डेप्रिसिएशन. सेकेंड ईयर में एक और एसेट खरीद लिया, फर्स्ट एसेट में पूरे साल की 1 लाख पे 20% और सेकेंड एसेट में 6 मंथ्स का. टोटल डेप्रिसिएशन 26,000. ओके, अब इसी साल के एंड में एक एसेट सेल होगी, बाय बैंक सेल वैल्यू टू प्रॉफिट ऑन सेल एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन. जो बैलेंस कैरी डाउन है उसको क्या कर देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय डेप्रिसिएशन. सिर्फ एक ही एसेट रह गया था, बस उस पर डेप्रिसिएशन लगाइएगा, रेस्ट विल बी बाय बैलेंस कैरी डाउन एंड योर आंसर शुड टैली. नाउ यू विल बी सॉल्विंग द सेम सम एंड यू विल बी कवरिंग लाइक सेंडिंग मी क्वेश्चन 1 से लेके 7 फ्रॉम बुक, कंप्लीट क्वेश्चंस, एंड सेंड मी द मैसेज. ठीक है ना, सारे बच्चे सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट करेंगे और मुझे सबमिट कराएंगे आज. इज इट क्लियर? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.